So next thing that comes up is angular acceleration. एंगुलर वेलोसिटी से रिलेटेड एमसीक्यू हो गया. अब एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करते हैं. सो दैट्स इवन सिंपल. एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन. सो angular acceleration is indicated by the symbol alpha. So there is a little difference between the notations. Linear acceleration is indicated by the symbol a, that is a with a vector head. Lekin angular acceleration is represented a little change, that is alpha. So it is represented by alpha and the units are radian per second square. Radians per second square are the units of angular acceleration. So let's come up with an MCQ about angular acceleration. तो angular acceleration से related एक MCQ आ गया क्योंकि only this information you needed about angular acceleration और direction इसकी भी along the axis of rotation होती है. The good thing is that जितनी भी angular चीजें आप पढ़ने जाते हो maximum of them have the direction along the axis of rotation. जिसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि that must be along tangent or downward or outward or inward. That is always along the axis of rotation. Maximum of all the angular quantities जितनी भी हम पढ़ने जा रहे होते हैं. So the question is, a flywheel gains speed of 540 revolutions per minute in 6 seconds. Its angular acceleration is. तो हमने क्या करना है? एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना है. एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे फाइंड किया जाता है? द फॉर्मूला पिछले स्लाइड में भी आपने देखा है. अल्फा इक्वल्स टू डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. What is angular velocity? 540 revolution per minute. So we have to convert it into radian per second. So we multiply it by 2 pi and divide by 60. और delta t की वैल्यू भी यहाँ साथ पुट कर दीजिए. That is 6. So it comes up like 540 into 2 pi divided by 360. So you cut 360 with 2, that comes 540 pi over 180 and 0 से cancel हो जाता है and 54 divided by 18 is 3. So the answer comes up 3 pi. Sorry, 3 pi. So 3 pi is alpha. So alpha is the correct option. 3 pi radians per second square. Here is a problem with the unit. Units are not per second, they are per second square. Okay? So alpha is the correct option. So for one complete revolution, ratio of angular to linear frequency is. So angular frequency is omega. Here the thing you need to know that angular frequency and angular velocity are quite similar things. So omega over f. उसने पूछा angular to linear. And omega equals to 2 pi f divided by f. F cancels with f and ratio comes up with 2 pi divided by 1. So alpha is the correct option. Okay? अब हम कुछ रिलेशंस पहले डिस्कस करते हैं कि अगर आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर और लीनियर टर्म्स आ रहे हो तो आप उनके इंटर कन्वर्जन कैसे कर रहे होगे. तो सबसे पहले हमारे पास है रिलेशन बिटवीन linear and angular displacement, that is s equals to r theta. Here you can see. उसके बाद है v equals to r omega, linear and angular velocity, and the last one is linear and angular acceleration, that is a equals to r alpha. So ये तीन relations आपको याद होने चाहिए. उसके बाद we have a total table of like आप वही चीजें जो आप linear motion में यूज कर रहे होते हो उनका काउंटर पार्ट angular motion में क्या होता है. अब इन चीजों को यहाँ पर टेबल में समराइज किया हुआ है. These are few of them. बाकी सारी चीजें आप साथ साथ कोर्स के अंदर लर्न करते रहोगे. डिस्प्लेसमेंट वहां पे d से इंडिकेट किया जाता है, यहाँ पे थीटा से इंडिकेट किया जाता है. वेलोसिटी यहाँ लीनियर मोशन में v और एंगुलर मोशन में दैट इज ओमेगा. एक्सेलरेशन a replaces with alpha. M moment mass of the body which is in linear motion, and the effect of mass is accommodated by moment of inertia in angular motion. So आपसे ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि अगर what is the counterpart of mass in angular motion, that is moment of inertia. उसके बाद linear motion में force body को move करा रहा होता है और angular motion में torque body को move करा रहा होता है. Next we have momentum.
लीनियर मोशन में मोमेंटम जो होता है दैट इज p represented by p which equals to mv, जबकि एंगुलर मोमेंटम जो होता है दैट इज l equals to r cross p. And the last thing I have over here that is kinetic energy. In linear motion we have half mv square, जबकि in circular motion we have again half I omega square ही होता है. So you may place half over here, यहाँ पे half I omega square. So these were some relations जो कि लीनियर और एंगुलर फैक्टर्स की कन्वर्जन, इंटरकन्वर्जन के लिए यूज किए जाते हैं. तो ये भी आपको मेमोराइज करने सवाल होंगे आपके, कई एमसीक्यूज में यूज हो रहे होंगे नेक्स्ट. सो इसके बाद हम लीनियर इक्वेशंस ऑफ मोशन को ट्रांसफॉर्म करते हैं एंगुलर इक्वेशंस ऑफ मोशन में. सो इक्वेशंस ऑफ मोशन में सबसे पहले वी हैव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. इफ यू रिमेंबर दैट वाज Vf equals to Vi plus At. तो इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, आपने सिर्फ ये करना है कि जितनी भी लीनियर टर्मिनोलॉजीज हैं उनको रिप्लेस कर दो सिंपल विद एंगुलर टर्म्स. आपके पास यहाँ Vf था, यू रिप्लेस्ड इट विद ओमेगा f इसको, उसके बाद Vi था तो वी रिप्लेस्ड इट विद ओमेगा I, और उसके बाद लास्ट में A था तो वी रिप्लेस्ड इट विद अल्फा. ठीक है, तो सिंपल आपने क्या किया, तमाम लीनियर टर्म्स को आपने एंगुलर टर्म से रिप्लेस कर दिया. सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव थीटा इक्वल्स टू ओमेगा IT प्लस हाफ AT स्क्वायर. नाउ एग्जैक्टली रिमेंबर थीटा किसके जगह पे प्लेस कर रहे हैं हम लोग, S के जगह पे. द S वाज लीनियर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और थीटा इज एंगुलर डिस्टेंस या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. और अगेन ओमेगा I एंड अल्फा उसकी रिप्लेसमेंट में आ गए Vi और A के रिप्लेसमेंट पे. और द लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इक्वल्स टू Vf स्क्वायर माइनस Vi स्क्वायर. तो उसके लिए हमारे पास है 2 अल्फा थीटा इक्वल्स टू ओमेगा f स्क्वायर माइनस ओमेगा I स्क्वायर. ओके, इसके बाद मूव करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स पे. अब सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पहले तो ये कि दिस इज द फोर्स दैट मेक्स अ बॉडी फॉलो अ कर्व पाथ. Body always try to move in a straight path. For example, आप लोग पत्थर घुमाते घुमाते उसे छोड़ोगे, that will always move in a straight line. हर body they want to move in a straight line, लेकिन जो centripetal force होती है ये क्या करती है, that always attracts that body back. वो बैक खींचने की कोशिश करती है बॉडी, इस तरह से अपने सर्कुलर लीनियर पाथ को कन्वर्ट कर देती है सर्कुलर पाथ में, एंड दैट कीप्स मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ. तो यहां से एक चीज सबसे पहली जो अपने माइंड में रखनी है, दैट द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्ट द बॉडी टुवर्ड्स सेंटर. तो फिर बॉडी वापस क्यों नहीं आ जाती, बिकॉज वहां पे साइमल्टेनियसली एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट हो जाती है जो कि आउटवर्ड एक्ट करती है और बोथ कैंसल आउट ईच अदर. दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, द नेट फोर्स बिकम जीरो, और से उसी एक कांस्टेंट रेडियस के सर्कल में बॉडी मूव करती रहती है. तो इट इज गिवन बाय mv स्क्वायर ओवर r. अगर आप लीनियर वेलोसिटी की बात करते हो तो इट इज गिवन बाय mv स्क्वायर ओवर r, और अगर आप एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हो दैट इज गिवन बाय mr ओमेगा स्क्वायर. अब यहां पे दो चीजें नोट करने वाली हैं. पहला ये कि लीनियर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स और रेडियस का इनवर्स रिलेशन है, जबकि अगर आप एंगुलर मोशन में देखते हो तो एंगुलर मोशन में फोर्स और रेडियस का डायरेक्ट रिलेशन है. तो हाउ इज इट पॉसिबल दैट अ सिंगल क्वांटिटी इज इन डायरेक्ट रिलेशन एज वेल एज इन इनवर्स रिलेशन विद द अदर क्वांटिटी? तो दो चीजें आपने यहां माइंड में रखनी है कि जब हम इसकी बात कर रहे होते हैं, अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, उसके साथ दोनों तरह की वेलोसिटीज एसोसिएट करती हैं. एक लीनियर वेलोसिटी भी व्हिच इज अलोंग टेंजेंट एट ऑल द टाइम्स, और एक एंगुलर वेलोसिटी भी एसोसिएट करती है. तो अगर तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो आपके पास Fc जो है सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट विल बी इन डायरेक्ट रिलेशन विद r. अगर आपके पास एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा कांस्टेंट होगा, लेकिन अगर आपके पास ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, v कांस्टेंट है, तो v कांस्टेंट होगा. आप यहां से v को एलिमिनेट करोगे तो आपको मिल जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स इज इन इनवर्स रिलेशन विद r व्हेन v इज कांस्टेंट. तो ये दो टर्म्स आपने माइंड में रखनी है. अगर आपको बोला जाए कि द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी तो आप Fc विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, और अगर आपको बोला जाए कि Fc moves with constant linear velocity तो आपके पास Fc will be inversely proportional to r.